Yes, good morning everyone. Today's our new series of class 10 mathematics, and in this series we are going to study real numbers, and first part we are concluding starting of the introduction and some questions from your NCERT book of class 10 mathematics. And it's my request to subscribe the channel so that you can get easy notification for our next part of the real number. Let's we start. Real number. Real number, first part. We have to also know about the various types of number which we had studied in our junior classes like 6, 7, 8, 9. Numbers are natural number, a set of natural number represented by n. All counting numbers are called natural number like 1, 2, 3, 4 and so on. Set of natural number represented by capital N, or we say collection of natural number n. The smallest natural number is 1. Largest natural number infinite, so we cannot write. We cannot write natural number or largest natural number because each and every natural number has its successor. अब किसी भी नंबर का सक्सेसर उस नंबर से बड़ा होता है, ये तो आपको पता है. कोई भी नंबर आप लिख लीजिए, उसके पास एक सक्सेसर तो है. इसका मतलब कि आप जो भी नंबर लिखेंगे उससे बड़ा नंबर उपलब्ध है. So that we say we cannot write largest natural number, and hence it is we call as infinite. Whole number, set of whole number represented by W. Natural numbers together with zero is called whole number. यानी कि जो नेचुरल नंबर है उसमें अगर जीरो उस कलेक्शन में आ जाए तब ये फुल कलेक्शन को हम लोग होल नंबर कहेंगे. It means all the natural numbers are whole number, but all whole numbers are not natural, क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर में नहीं है. Integers, set of integers are represented by Z. Natural numbers, negative of natural numbers together with zero, यानी कि नेचुरल नंबर और उसका निगेटिव और जीरो, जब ये कलेक्शन पूरा हमारा होगा तब इस कलेक्शन को हम इंटीजर्स कहेंगे. Positive integers with positive symbol or right side of zero on number line. Negative integer with negative symbol or the number left side of the zero on number line. So three types of integers are there: positive integer, negative integer, and zero, neither positive nor negative. Now the real number. अभी आपने ऊपर में जितने भी नंबर पढ़े हैं ये सब all the numbers above, natural number, whole number, integer, the whole collection is the collection of real number, and the set of real number is represented by Q. A number is called a real number if it can be written in the form of P by Q, where Q should not zero. यानी P by Q के फॉर्म में तो हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में हो सकता है, बट उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए. अगर किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जीरो हुआ तो सिंपल है, ये टोटल फ्रैक्शन ही हमारा जीरो हो जाएगा. इट मीन्स ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स आर रियल नंबर्स.
we can represent a real number on a number line. नंबर लाइन बनाएंगे. नंबर लाइन क्या होता है? लाइन जिसके ऊपर हम डिफरेंट नंबर्स को लिख सकते हैं. ये हम लोग अपने पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. फिर भी पिछले क्लास के नॉलेज को एक बार रिपीट करना जरूरी होता है. अब आते हैं क्लास 10 जो कि सिलेबस में फर्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. ये लेमा क्या है? व्हाट इज लेमा? इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट. लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, मतलब कि ये एक स्टेटमेंट है जो पहले से प्रूफ किया हुआ है और शायद हम लोग अपने जूनियर क्लास से इसको पढ़ते आ रहे हैं. जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. याद कीजिए, जब हम लोग डिवाइड देते थे तो डिवाइड को चेक कैसे करते थे? चेक करने के लिए हम लोगों के पास एक फॉर्मूला था, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. और यही लेमा है. उस समय हम लोग चूंकि छोटे क्लास में थे इसलिए हमारे टीचर्स ने उस समय लेमा वर्ड यूज नहीं किया. अब हम लोग लेमा वर्ड यूज करेंगे. हियर जो फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस देन और इक्वल टू रिमाइंडर and it is also remainder greater than b into divisor. Here a is dividend, b is divisor, q is quotient, r is remainder. याद कीजिए, जब भी हम लोग किसी भी नंबर को डिवाइड करते थे दूसरे नंबर से जिसका टेबल पढ़ते थे वो डिवाइजर होता था, तो रिमाइंडर हमेशा ही उस डिवाइजर से छोटा होता था. जैसे कि अगर हम लोग किसी नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 का टेबल पढ़ के डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर कभी भी 9 तो नहीं बचेगा, क्योंकि अगर 9 रिमाइंडर बच रहा है इसका मतलब कि 8 से डिवाइड ही करना है और 9 रिमाइंडर हम बचा रहे हैं. इसका मतलब है कि हम एक बार और डिवाइड दे सकते हैं. इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कंडीशन गिवन हियर कि आपका रिमाइंडर 0 हो सकता है या जो भी डिवाइजर है जिससे हम डिवाइड करने वाले हैं उससे छोटा हो सकता है, उसके बराबर भी नहीं हो सकता. सो द स्टेटमेंट हियर a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस देन और इक्वल टू रिमाइंडर, this remainder is greater than or equal to 0 and remainder is less than divisor. इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं. सपोज आपको 25 को डिवाइड करना है 4 से, तो 25 डिवाइडेड बाई 4. इसमें डिविडेंड हमारा 25 है, डिवाइजर 4 है क्योंकि 4 से डिवाइड करना है. जब डिवाइड करेंगे तो 4 6 या 24 6 बार डिवाइड चला गया तो क्वोशिएंट 6 आ गया और 6 बार डिवाइड होने से ये 6 4 या 24 ही हो रहा है, तो यानी कि 1 हमारा बच रहा है, दैट इज द रिमाइंडर. अब इस क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं. थोड़ा और एक्स्ट्रा एग्जांपल के साथ इस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं एक बार. सपोज राइट ऑल पॉसिबल रिमाइंडर्स इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 4. जब किसी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचने का उम्मीद है? 5 बच सकता है क्या? 6 हो सकता है क्या? तो अभी हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा है कि भाई रिमाइंडर जिस कभी भी जो हमारा डिवाइजर होगा उससे हमेशा छोटा होगा, रिमाइंडर छोटा होगा. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि भाई जो हमें डिवाइड करना है वो 4 से डिवाइड करना है, तो b इज 4. तो रिमाइंडर हमेशा 4 से छोटा होगा, यानी कि 3 और 2
और 1 और 0, यानी रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, तो रिमाइंडर 4 से छोटा होगा और वो होगा 3, या 2 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 0 हो सकता है। हाँ, अगर रिमाइंडर 0 होता है, इट मीन्स इफ रिमाइंडर इज 0 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई। हम लोग डिविजिबल नंबर ऐसे ही पता लगाते थे ना, नंबर से डिवाइड कर दो, अगर रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है तो बोलेंगे ये डिविजिबल है, रिमाइंडर बच गया तो नॉट डिविजिबल है। तो इफ द रिमाइंडर इज 0 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 4। एक और देख लेते हैं, राइट ऑल पॉसिबल रिमाइंडर्स इफ नंबर इज डिविजिबल डिवाइडेड बाई 3। अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है तो क्या क्या रिमाइंडर बचने का उम्मीद है? बी डिवाइजर इक्वल टू 3, so remainder is less than 3, 2, 1, 0. If r is 0, अगर 0 आ जाता है r, then the number is divisible by। कभी भी जिस नंबर से आप डिवाइड करो, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आप यही कहेंगे कि हाँ भाई, जिस नंबर को मैं डिवाइड दे रहा था वो नंबर इस नंबर से डिविजिबल है। अब जरा HCF निकालते हैं। HCF याद कीजिए कैसे आप लोग निकालते थे, डिवाइड करके, डिवीजन लेवा लिखा हुआ, तो डिवाइड करके निकालना। तो कैसे निकालते थे डिवाइड करके? पहले 2 नंबर को डिवाइड करते थे, फिर जो रिमाइंडर बच जाता था उसी से पहले वाले डिवाइजर को मैं डिवाइड करता था, और ऐसे में वो डिवाइजर हमारा आंसर होता था जो रिमाइंडर 0 बनाते थे। वो डिवाइजर हमारा आंसर होता था जिसने रिमाइंडर को 0 बना। तो जरा इसको चेक करते हैं हम। यहाँ 867 बड़ा है 225 से, इसका मतलब कि 867 डिविडेंड है, तो 867 को जब डिवाइड करेंगे 225 से तो ये 3 बार डिवाइड हो जाता है और 102 रिमाइंडर बच जाता है। तो हम इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में लिख देंगे कि 255 मल्टीप्लाई 3 मीन्स BQ प्लस रिमाइंडर 102। अब रिमाइंडर से डिवाइड करना है, यानी 102 से डिवाइड करना है पहले वाले डिवाइजर यानी 255 को। तो 255 ग्रेटर देन 102, so we divide 255 by 102। 102 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में होता है, एक 204 आ जाएगा, तो 51 रिमाइंडर बच जाएगा। 51 रिमाइंडर बच गया, यानी कि अब इस रिमाइंडर से पहले वाले डिवाइजर यानी कि 102 को डिवाइड करना है। तो 102 डिवाइडेड बाय 51, जब डिवाइड करेंगे तो 2 बार में डिवाइड हो जाता है, तो 0 रिमाइंडर हो जाता है। तो हियर 102 इक्वल टू 51 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0। हियर रिमाइंडर बिकम्स 0, देयरफॉर जिस डिवाइजर ने रिमाइंडर को 0 बनाया वो HCF है। तो 255 से 0 नहीं बना था, 102 जब डिवाइजर था तब भी 0 नहीं हुआ था रिमाइंडर, और जब 51 डिवाइजर हुआ तब हमारा रिमाइंडर आ गया 0, एंड 51 इज द HCF ऑफ 867 and 255. This question is from your NCERT. More examples, same way, 30 and 84 to find the HCF. 84 ग्रेटर देन, जब 84 से डिवाइड करेंगे, 84 को डिवाइड करेंगे 30 से, तो 30 टू 60, 2 बार में 60 आया, 24 आपका रिमाइंडर है। अब क्या करेंगे, 24 से 30 को डिवाइड करना है, 30 को डिवाइड करना है, 30 को डिवाइड कर दिया, 30 इज इक्वल टू 24 इंटू 1, एक बार में 24 आ गया, 6 आपका रिमाइंडर।
उसके बाद 24 इज इक्वल टू 6 इंटू 4, मतलब कि 6 4 जा 24 और 0 रिमाइंडर हो गया, यानी कि एकदम पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर हमारा 0 बच गया। जब रिमाइंडर 0 बच गया तो किस डिवाइजर ने रिमाइंडर को 0 बनाया? 6 से जब मैंने डिवाइड किया तब जाके ये 0 हो, एंड 6 इज द HCF। 6 इज द HCF। 1 मिनट। टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है। नेक्स्ट, ये एक कंडीशन है हमारा। दिस इज अ कंडीशन शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 2m and odd integer is of the form 2m plus 1। प्लस 1 छुपा हुआ है। हाँ, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 2m के फॉर्म में होगा। याद कीजिए, हम लोग जब भी इक्वेशन बनाते थे क्लास 8-9 में, जब भी क्वेश्चन होता था इवन इंटीजर के बारे में, तो हम लोग लेट करते थे कि लेट इंटीजर विथ 2x, और ऑड के बारे में होता था तो 2x में 1 ऐड कर देते थे। तो हियर m इज गिवन, ओके, 2m इवन है अगर वो 2m के फॉर्म में है, और 2m प्लस 1 के फॉर्म में अगर है तो वो एक ऑड इंटीजर आ जाएगा। लेट की कोई नंबर n है, लेट n इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 2, अगर n को 2 से डिवाइड किया तो लेट की m बी द क्वोशिएंट एंड r बी द रिमाइंडर। अगर किसी नंबर n को 2 से डिवाइड किया तो हमारा क्वोशिएंट m और रिमाइंडर r आ रहा है। तो बाय यूक्लिड फॉर्मूला n इज इक्वल टू 2m प्लस r। n वो नंबर है जिसको हमने 2 से डिवाइड किया, और जब डिवाइड किया तो m हमारा क्वोशिएंट आया था, r रिमाइंडर आया था। इस कंडीशन में r 2 से छोटा होगा, रिमाइंडर 2 से छोटा होगा और 0 हो सकता है। इसका मतलब पॉसिबल रिमाइंडर्स 2 से छोटा यानी कि 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। तो n को लिखेंगे क्या? n इज इक्वल टू 2m प्लस 0 इफ 0 इज रिमाइंडर, और 2m प्लस 1 इफ 1 इज रिमाइंडर। So n is equal to 2m और 2m plus 1। अब when n is equal to 2m, अगर n 2m के बराबर है तो इसको हम लोग इवन इंटीजर कहेंगे। रिमेंबर, इवन इंटीजर्स आर द मल्टीपल्स ऑफ 2। कोई भी इंटीजर जो इवन है वो 2 का मल्टीपल्स। तो ये 2 से m को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2m इज मल्टीपल ऑफ 2, दिस इज व्हाई इट इज इवन। तो याद कीजिए, अगर इवन में हम 1 ऐड करेंगे तब तो मेरा ऑड बन जाएगा ना। इफ n इज 2m प्लस 1, n इज एन ऑड इंटीजर। इवन नंबर प्लस 1 इज इक्वल टू ऑड नंबर। किसी भी इवन नंबर में 1 को ऐड करोगे तब वो ऑड नंबर बन जाएगा, या ऑड नंबर में 1 ऐड करो या 1 माइनस करो तब वो इवन नंबर बन जाएगा। उल्टा भी हम लोग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Show that every positive odd integer is of the form 6m plus 1, 6m plus 3, 6m plus 5 for some integer m। अगर m कोई इंटीजर है तो इवन इन ऑड इंटीजर इस बार 6m plus 1, 6m plus 3, 6m plus 5 के रूप में हो सकता है। अब 6m दिया हुआ है, इट मीन्स नंबर इज डिवाइडेड बाई 6।
तो लेट कि n कोई पॉजिटिव इंटीजर है और ये 6 से जब डिवाइड करते हैं, व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 6, m बी द क्वोशिएंट एंड r बी द रिमाइंडर। तो कैसे लिखेंगे लेमा के फॉर्म में, n is equal to 6m plus r where remainder is less than 6. So possible remainders क्या हो जाएगा, 6m plus r where r is equal to 0, 1, 2, 3, 4 और 5। इसी में से कोई एक रिमाइंडर हो सकता है 6 से छोटा। तो इस फॉर्म में क्या क्या पॉसिबल है, इफ रिमाइंडर इज 0 तो 6m plus 0, 6m आया। Remainder is 1, 6m plus 1. Remainder is 2, 6m plus 2. Remainder is 3, 6m plus 3. Remainder is 4, 6m plus 4. Remainder is 5, 6m plus 5. अब इस केस में जो 2 का मल्टीपल्स होगा वो हमारा इवन इंटीजर हो जाएगा, यानी कि इवन इंटीजर इफ n इज इक्वल टू 6m, 6 2 का फैक्टर है तो 6 2 का मल्टीपल है तो 6m भी 2 का मल्टीपल होगा। अब 6m में 2 ऐड करेंगे तो भी 2 का मल्टीपल आएगा, 6m में 4 ऐड करेंगे तो भी 2 का मल्टीपल है। यानी कि ये सब नंबर जो अभी आपने देखा, n इज इक्वल टू 6m, 6m प्लस 2, 6m प्लस 4, ये सब 2 के मल्टीपल्स हैं। इसका मतलब कि ये सब इवन नंबर है और किसी इवन नंबर में 1 ऐड करने से या ऑड नंबर ऐड करने से इवन प्लस ऑड नंबर इज इक्वल टू ऑड नंबर। देयरफॉर n इज ऑड इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ 6m plus 1, 6m plus 3, 6m plus 5। इवन नंबर प्लस ऑड नंबर इज इक्वल टू ऑड नंबर। अगर 6m हमारा इवन नंबर है तो उसमें 1 ऑड ऐड किया तो ये ऑड नंबर अब रिजल्ट आएगा। 6m जो इवन है उसमें 3 ऐड करेंगे तो अब फिर से ये ऑड नंबर आ जाएगा। इवन नंबर प्लस ऑड नंबर इज ऑड नंबर, इस चीज को याद रखना होगा। सो प्लीज कीप रिवाइजिंग according to this one and by self also you have to revise it। अगले वीडियो में कोशिश करेंगे इसी लेसन से, इसी रियल नंबर से कुछ और क्वेश्चंस को शामिल किया जाए। थैंक यू।